Okay, students, a very good morning and welcome back to class 12th physics lecture. And we were going ahead with the topic of nuclei, in which we were studying radioactivity, we were studying about the disintegration. And the last lecture we studied up till half-life of a radioactive sample. ठीक है, यहाँ तक का डेटा हमने पढ़ दिया था. So once again, we'll review the data what we studied, and then we'll go ahead with the new topic today, that is radioactivity. So we studied the general expression that number of undecayed nuclei remaining after a given period of time was given as n naught e की power minus lambda t. बराबर. Then we studied the radioactive decay law, that was minus dn by dt, which was equals to lambda times n. बराबर. Then we also studied about the half-life, where we studied the half-life T half given as 0.693 by lambda, as well as another expression that we studied for half-life, and the sample was n is equals to n naught into 1 by 2 power n. तो ये जनरल डेटा था बेटा, जो हमने अभी तक देखा, पढ़ा, समझा था. ठीक है. Today we will talk about another term in this radioactivity decay, and talking about nuclei. We talk about the activity of a radioactive sample. ठीक है, आज बात करेंगे activity of a radioactive sample. It is denoted by R. Activity of a radioactive sample is denoted by R. Now, what exactly is the activity? देखो, जब हम बात करते हैं एक्टिविटी पे, या if we speak in simple terms that this particular person is very active, this boy is very active, तो जब हम बात करेंगे एक रेडियोएक्टिव सैंपल की, तो बेटा रेडियोएक्टिव सैंपल से हम क्या डील कर रहे थे? We were dealing about the decay. We were dealing about the disintegration of the nuclei, alpha, beta, gamma radiation का alpha निकलना, beta निकलना, gamma radiation निकलना, इन सब की बात कर रहे थे. तो एक रेडियोएक्टिव सैंपल की एक्टिविटी क्या है? उसकी एक्टिविटी ये है कि वो डिसइंटीग्रेट क्या कर रहा है, वो डिसइंटीग्रेट कैसे कर रहा है, जल्दी कर रहा है, धीरे से कर रहा है, moderate कर रहा है. So that is defined as the activity. So in simple, if you want to define the term activity, you can say it is the rate of decay or disintegration of a radioactive sample, किसकी बात कर रहा है? रेट की बात कर रहा है. तो किसी रेडियोएक्टिव सैंपल का जो रेट ऑफ डीके होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, that is defined as its activity. So I can say, therefore, R can simply be written as minus of dn by dt. यही तो होता था रेट. फिर से नेगेटिव टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? Why we are using a negative sign? Negative sign we are using because यहाँ पे न्यूक्लियस का डीके का प्रोसेस चल रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल उसकी एक्टिविटी से रिड्यूस हो रहे हैं. So you take the term as negative. Now, if you remember, minus dn by dt is nothing but lambda n. ठीक है ना, minus dn by dt is nothing but lambda n. तो पुट कर सकते हैं. So therefore R can also be written as lambda times n. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. Why? Because as minus dn by dt is equals to lambda n. That is the radioactive decay law. कि the rate at which the radioactive nuclei decays, ठीक है, वो जो रेट होता है, that is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that instant. यही पढ़ा था. तो माइनस dn by dt क्या हो गया? लैम्डा n. यहाँ पे इसकी जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया. अब हमने एक और एक्सप्रेशन निकाली थी, कौन सी? That is n is equals to n naught e की पावर minus lambda t. So now as n is equals to n naught e की पावर minus lambda t, therefore I can say activity R
is equals to lambda times n naught into e की power minus lambda t. This is again one of the expressions for activity of a radioactive sample. Clear है? यहां तक clear है? Is it clear to all of you? Yes, please. Is it clear to all of you? Okay, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. Now we got the expression for the activity that R is equals to lambda times n naught into e की power minus lambda t. Now for initial case, that is for initial activity, अब देखो, जब इनिशियल अमाउंट ऑफ सैंपल लेते थे तो हम क्या बोलते थे उसको, वी डिनोटेड इट बाय n naught. तो यहां पे बात कर रहा है इनिशियल एक्टिविटी की, तो इनिशियल एक्टिविटी को किससे डिनोट करोगे, r naught. फॉर इनिशियल एक्टिविटी r naught at t is equals to 0. At t is equals to 0 प्लेस करके देखो तो क्या मिलेगा, r is equals to lambda times n naught into e की पावर माइनस लैम्डा टाइम्स, इनिशियल ले रहे तो टाइम 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो e की पावर 0, तो ये बनेगा लैम्डा टाइम्स n naught e की पावर 0. Anything to the power of 0 is 1, so I can say therefore r is equals to lambda times n naught. बनेगा भाई, r is equals to lambda times n naught, और ये क्या है, this is nothing but r naught, which is the initial activity. देखा, तो लैम्डा टाइम्स n naught क्या बनता है, r naught बनता है. तो यहां पे अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो यू कैन से therefore r can be denoted as lambda times n naught, which is r naught into e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा. ठीक है, ये तो इनिशियल केस हो गया. अब यहीं पे देखो तुम, जब हम बात कर रहे थे कि रेडियो एक्टिव सैंपल है, एक्टिविटी शो कर रहा है, डिसइंटीग्रेट करता जा रहा है, काफी टाइम बाद आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज एट t is equals to infinity. फिर से यहां पे देखो तो क्या आएगा, r is equals to lambda times n naught into e की पावर माइनस लैम्डा into infinity. तो ये कितना, ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये माइनस इंफिनिटी है, तो ये बनेगा लैम्डा टाइम्स n naught into e की पावर माइनस इंफिनिटी. माइनस से पावर है, नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आई कैन से देयरफॉर r is equals to lambda times n naught upon e की पावर इंफिनिटी. अब ये e की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये बनेगा lambda times n naught upon infinity, which is nearly equals to 0. देखो यहां से भी क्लियर हो गया कि आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिके होता रहेगा, डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा, एंड द सैंपल न्यूक्लियाई ऑल विल बी डिकेड एंड द एक्टिविटी वुड बिकम 0. आई बात समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से क्या क्या एक्सप्रेशन मिली, r is equals to lambda times n naught, एक एक्सप्रेशन ये मिल गई, एक एक्सप्रेशन मिल गई r is equals to r naught e की पावर माइनस लैम्डा t. अब देखो ये सारी एक्सप्रेशन सेम आती जा रही है, तो जब हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, r is equals to r naught 1/2 की पावर n, where n is the number of half life cycles. ठीक है, अब देखिए,
तो ये बात क्लियर हो गई। इनिशियल आर नॉट, फाइनल एक्टिविटी लॉन्ग टाइम है, सब डीके हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो एक्टिविटी क्या, तो जब कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो एक्टिविटी हमारी जीरो आ रही है। ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ दिस एक्टिविटी, talking about the calculations for this activity, units for this activity, तो इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है? यूनिट्स, सबसे पहली यूनिट है इसकी बैक्यूरल, बैक्यूरल डिनोटेड बाय BQ, and 1 becquerel is equals to 1 disintegration per second। ये कितना है? 1 disintegration per second becquerel। सेकेंड यूनिट इसकी आती है क्यूरी, क्यूरी डिनोटेड बाय CI, and 1 curie is equals to 3.7 into 10 की पावर 10 disintegration per second। 3.7 into 10 की पावर 10 disintegration per second। Okay, do you know any other unit also? Do you have any idea of any other unit of activity? Yes? Do you have an idea of any other unit for activity? एक तो बैक्यूरल हो गई, एक क्यूरी हो गई। वेरी गुड। रदरफोर्ड, कौन सी यूनिट है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। And one Rutherford is equals to 10 की पावर 6 disintegrations per second। और इसको 3.7 into 10 की पावर 10 becquerel भी लिख सकते हो। इसको 1 Rutherford is equals to 10 की पावर 6 disintegration per second, या 1 Rutherford is equals to 10 की पावर 6 becquerel भी लिख सकते हैं। Is this part clear to all of you? Yes, please. Clear है बेटा? Okay, चलो let's do a question। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन सेज in a radioactive sample, in a radioactive sample, there are 10 की पावर 20 atoms and its activity is 3 into 10 की पावर 11 becquerel। Find the decay constant and half-life। Find the decay constant and half-life। चलो, just try it out, all of you, जल्दी से ट्राई करो and fetch out the answer। It's a direct question, जल्दी से ट्राई करो और आंसर निकालो। Quick। Today many students are absent। साक्षी आदि देव, तरुणे जोशी, ओके चलो इसका आंसर निकालो। बाकी लोग, जो लोग प्रेजेंट हैं वो लोग इसका आंसर निकालो जल्दी से। you have been given to you there are 10 की पावर 20 atoms। ठीक है, इनिशियल वैल्यू सैंपल की दी हुई है and you have been given the activity also 3 to the power 11 becquerel, and Prajwal has come up with the answer of lambda, that is the decay constant। बाकी और लोग भी बताओ भाई। तो भाई यहाँ से वेरी मच क्लियर है, we can simply use this expression
and we get the answer. That is R, activity R is equals to lambda times n naught. ठीक है, R मालूम है हमको 3 into 10 की power 11 becquerel, which is equals to lambda times n naught भी दिया है 10 की power 20. तो बेटा lambda क्या मिलेगा? 3 into 10 की power 11 upon 10 की power 20. तो ये lambda आ जाएगा 3 into 10 की power 11 minus 20, I think minus 9 second inverse. भैया बाकी लोग भी आंसर दो. Others also got the same answer. Yes, please. And what about the half-life? What about the half-life? What is the half-life of this radioactive sample? Quick. T half 0.231 into 10 की power 9 seconds. भैया बाकी लोग भी आंसर तो, I'm waiting for others also. Prajwal, very good beta. See, what was T half? The expression for T half we know is 0.693 by lambda. T half is equals to 0.693 by lambda. तो वैल्यू प्लेस कर दो, क्या मिलेगा? T half is equals to 0.693 divided by lambda कितना है? 3 into 10 की power minus 9. ये ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? T half is equals to 0.326, which is 9. 3 into 10 की power 9 seconds. Very good. Very good. 0.231 into 10 की power 9 seconds. Clear है? चलो, great. Let's go ahead with one more problem. ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं. The next problem says the activity of a radioactive sample reduces to 1/32 of its initial value in 48 hours. Find its half-life and decay constant. Find its half-life and decay constant. ये दो चीजें निकालो. और दे दिया तुमको कि ये 1/32 of its initial value. तो करने को देखो तो तुम यहां पे अगर इनिशियल वैल्यू ले लेते हो n नॉट, ठीक है, तो एक हाफ लाइफ साइकिल के बाद कितनी बचेगी? हाफ हो जाएगी. ठीक है, ये पहली हाफ लाइफ साइकिल होगी. दूसरी हाफ लाइफ साइकिल के बाद कितनी बचेगी? इसकी भी हाफ हो जाएगी n0/4. तीसरी हाफ लाइफ साइकिल के बाद कितनी बचेगी? इसकी भी हाफ हो जाएगी n0/8. ठीक है, n0/8 से शुरू करते हैं, फिर n0/8. फिर चौथी हाफ लाइफ साइकिल कितनी हो जाएगी? n0/16. इसकी हाफ हो गई. पांचवी हाफ लाइफ साइकिल जब होगी तो ये हो जाएगा n0/32. वेरी गुड. तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ साइकिल आ रही है? 5 हाफ लाइफ साइकिल आ रही है. 5 हाफ लाइफ साइकिल. और 5 हाफ लाइफ साइकिल को कितना टाइम लग रहा है? 48 आवर्स. 48 आवर्स. ठीक है ना? तो 5 हाफ लाइफ साइकिल्स, 5 हाफ लाइफ साइकिल्स कितना है? 48 आवर्स ले लेंगे. तो एक हाफ लाइफ साइकिल कितनी लेगी? देयरफॉर वन हाफ लाइफ साइकिल कितना लेगी? वन हाफ लाइफ साइकिल वुड टेक 48 into 1 divided by 5.
5 9 are 45, 3 1 0 5 6 are 30, 9.6 hours is the half life period for this radioactive sample. 9.6 hours आएगा प्रज्वल, 13.6 नहीं आएगा भाई। एक तो ये जनरल तरीका है, सबसे बेसिक। दूसरा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ये सेम टाइप का प्रॉब्लम आपको आता है, इसी टाइप में आएंगे। यू कैन डायरेक्टली डू इट विद द एक्सप्रेशन, दैट इज r is equals to r naught into 1/2 की पावर। एंड देखो यहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रही है, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल। तो तुम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लगा के मत करना, हालांकि आंसर सेम आएगा, बट ये एक्सप्रेशन लगा के मत करना, यही एक्सप्रेशन लगानी पड़ेगी बिकॉज द टर्म ओवर हियर इज एक्टिविटी। ठीक है, सो वी हैव r is equals to r naught into 1/2 power n। अब r कितना है, 1/32 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू r naught थी, तो ये हो जाएगा r naught by 32 is equals to r naught into 1/2 power n। r naught हो गया, तो 1/32 is equals to 1/2 power n। तो ये हो जाएगा 1/2 होल पावर 5 is equals to 1/2 पावर n। तो बेटा n कितना आ गया, therefore n is equals to 5 हाफ लाइफ साइकिल्स। अब तुमको क्लियर है कि 5 हाफ लाइफ साइकिल को 48 आवर्स लग रहे हैं। 5 हाफ लाइफ साइकिल को 48 आवर्स लग रहा है, तो एक हाफ लाइफ साइकिल को कितना लगेगा, 9.6 आवर्स। अब लैम्डा की बारी है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ व्हिच इज 9.6। जल्दी से निकालो लैम्डा कितना आ रहा है। हाउ मच इज लैम्डा, 7.2 into 10 की पावर -3, 7.2 into 10 की पावर -3 आवर इनवर्स r, ठीक है, सेम 7.2 into 10 की पावर -3 r इनवर्स। ओके, ठीक है, तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेट्स गो अहेड विद द लास्ट पॉइंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, देन रेडियो एक्टिविटी वुड बी ओवर फॉर अस एंड देन वी टॉक अबाउट द मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ मीन लाइफ और द एवरेज लाइफ? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज the average of life of all nuclei present in the sample, present in the sample। ठीक है, अच्छा, ये हमको मालूम था कि टाइम के साथ साथ एक्टिविटी कितनी रिड्यूस हो जाती है, 0 पे रिड्यूस हो जाती है। तो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ of activity versus time, of activity versus time, तो बेटा यहां पे क्या होता है, इनिशियल वैल्यू से शुरू होती है एक्टिविटी। वो इनिशियल वैल्यू क्या होती है, r naught at time t is equals to 0, और फिर ये एक्टिविटी रिड्यूस होती जाती है और एक इनफाइनाइट टाइम पे कहीं जाके ये एक्टिविटी बन जाती है 0। ठीक है, फिर डिफाइन करो लैम्डा, याद करो। तो यहां पे लैम्डा डिफाइन करने के लिए वो टाइम दैट इज t is equals to 1 by lambda, जहां पे एक्टिविटी कितनी रिड्यूस हो जाती है, 36.8% या 0.368 टाइम्स r naught। इतनी रिड्यूस हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया रिड्यूस हो जाता है, तो इतने ही। और देखो सब कुछ सेम चल रहा है, इसका मतलब एक्टिविटी भी कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 36.8%।
कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 36.8%। एंड इफ यू स्टार्ट सी, तो देखो यहाँ के जो न्यूक्लियाई थे वो जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं, जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं। एंड स्लोली स्लोली इफ यू सी द एवरेज लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियाई गोस ऑन इंक्रीजिंग। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है तो जो डिसइंटीग्रेशन का टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, डीके का टाइम बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, तो एवरेज लाइफ भी क्या होगी? बढ़ती है। एंड दिस इज व्हाई एवरेज लाइफ इज डिफाइंड डिनोटेड बाय tau, which is nothing but the reciprocal of the decay constant, which is the reciprocal of the decay constant. अब एक चीज और देखो, lambda in terms of half life देखो, lambda is 0.693 upon T half. Lambda is 0.693 upon T half. So I can say therefore tau is equals to 1 divided by 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ ऊपर चला जाएगा तो ताऊ क्या आएगा? टी हाफ अपॉन 0.693। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स टी हाफ। तो ताऊ इज 1.44 टाइम्स टी हाफ। तो यहां से एक चीज और क्लियर होती है, that the average life is always greater than the half life. Average life is always greater than the half life of a particular radioactive sample. बात साफ सा काम है यहां पे तुमको दिख रहा था कि जैसे जैसे एक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? इसका टाइम एवरेज लाइफ बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। That means average life is going on increasing, but उसका जो हाफ लाइफ साइकिल था टी हाफ वो x था तो वो x ही है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल जैसे बढ़ते जा रहे थे सैंपल रिड्यूस होता जा रहा था, सैंपल रिड्यूस होता रहा। बट एवरेज लाइफ के साथ ऐसा नहीं है। एवरेज लाइफ का किस्सा तुम देख रहे हो कि यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे देखोगे तो एक इनफाइनाइट टाइम के बाद वो एक्टिविटी खत्म होगी, उसकी जीरो होगी। दैट इज व्हाई एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन always half life of a radioactive sample. Are these points and top parts of radioactivity very much clear to all of you? Clear है ये सबको? Yes, please. Students, is it clear to all of you? हाँ भाई, are these points of radioactivity clear to all of you? Only Prajwal has answered. Others? Priyanshu, Aman, Vedant. Is it clear to all? Vedant, Aman. Okay, ठीक है। तो विद दिस आई एंड माय लेक्चर। तो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई है, मगर एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी आगे आने वाले टाइम में वी विल बी सेंडिंग यू सर्टेन क्वेश्चंस टू डू। उन क्वेश्चन को कंटिन्यू करना, रेगुलरली रिवीजन रखना, ठीक है? आई विल टेकिंग योर रिवीजन आल्सो, बट आप लोग भी रिवीजन अपना करते रहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से हैप्पी दीपावली टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। अरे